क्यों रे, काम ना होता तेरे से? हैं? अरे ढंग से कर ले, तेरे घर में खाने को होता ना अड़ाना आता तू। चल काम कर। All been blessed enough to live protected and cherished life. We don't have to worry whether we'll have food in our plates at the end of the day or the roof over our head will be there when we wake up. Our parents can leave us at home and not worry whether we'll be there when they return. They can get a good night's sleep knowing that their jobs and houses are secure. However, we are among the fortunate few, and there are millions of parents and children who don't have this certainty. Every day of their life is a challenge that they must overcome to survive. They work endless, back-breaking hours every day for years on end. These are the nameless, faceless people who form the majority of the population in our cities. For them, there are no holidays, no Holi, no Diwali, just an endless blur of sleepless nights and countless days of an uphill battle. We consider ourselves to be the next generation, meant to reform our country. But let me ask you a question. Are the poor destined to be poor forever? Will they never be able to live a life of dignity and confidence? Let us take a journey through their life. This is Delhi, a sprawling metropolitan and home to thousands. Hundreds of people are milling to the city this very moment from every town in the country to achieve their dreams of making it big, a reality. Delhi, however, is not equipped to give homes to the influx it receives on daily basis. A plethora of people lie on the streets of Delhi, come hail or snow, unidentified by the government and homeless. Without ration cards, the meager help they are entitled to is not given to them. Their cries of anguish go unheeded. उससे फार्म भर देते हैं, कितनी बार भरे लेकिन एक बार भी नहीं मिले। और होता ही नहीं है। हम फोन नंबर भी ले लेते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। वोटर आईडी तो बनाते हैं, बना ही नहीं रहे, कह रहे प्रूफ लेके आओ, पहचान पत्र मांगते हैं, यहाँ का तो है नहीं तो हम कहाँ से। तो आपने कभी बोला नहीं उनको कि बोलते हैं बनवाओ, फार्म भरो, फार्म भरते हैं, मिलते नहीं, कम से कम नहीं तो 4-6 बार भर चुके हैं फार्म, एक बार भी नहीं मिला। हमारा कुछ भी नहीं है, हम मजदूर आदमी है, गरीब आदमी। तो राशन कार्ड तो सरकार से आपको मिलना जरूरी है। हाँ मिलना जरूर। वो हमारे 5 भी लड़के हैं, गरीब है सबसे। राशन कार्ड है आपके पास? नहीं जी, हमारे पास नहीं। और वोटर कार्ड? वोटर कार्ड तो यहाँ का नहीं है, गांव का है। तो तो आप वोट देते हो यहाँ? यहाँ नहीं देते अभी, जब वो बना ही नहीं तो कहाँ से देंगे। तो राशन कार्ड तो आपने हाँ। सरकारी ऑफिस में गए नहीं आप बनवाने? वो बनाते ही नहीं यहाँ पे कोई। क्यों नहीं बनाते, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है बेटी। As we walk down the streets, holding our noses against the growing stench, we could see stagnant water everywhere with swarms of mosquitoes. Drains lay open with children playing beside them. Piles of garbage littered every corner, and amid this were the tin-roofed houses of the slums inhabitants. Children fall ill here every week, and the cost of healthcare is not one that the family can afford. Is life here really possible? आप कहाँ रहते हो? रल्लूपुरा गाँव। कैसी जगह है वो? तो बहुत ही गंदा जगह है, एकदम पूरा है इधर, सारे कुछ मतलब नाला साफ नहीं होता है, जैसे मच्छर है, थोड़ा बारिश हो तो पानी जम जाते हैं, गंदगी है, लेकिन नाला खुला रहती है, पूरा डालती है और उसी से बच्चा को बीमारी होती है। While the world looks upon Delhi as an emerging global center, the majority of its population is plunged in darkness, fanning themselves with old newspapers, gazing at their fans and tube lights, hoping that their children won't have to sleep in the heat again. A staggering amount of 60,384 crores has been assigned to the electricity department in our current budget. Despite that, thousands of homes in the capital continue to be engulfed in a never-ending shadow. तो कभी आता कभी नहीं आता, काट देता है कीमत। क्यों आप तो किराया देते हो तो वो ऐसे बिजली क्यों काट देते हैं? वो कब बोलता है वो दिल्ली से काट लिया, परदेसी थोड़ी लड़ पाएंगे।
हम लोग तो मजदूर थे, मजदूर आदमी है, क्या हम लोग करेंगे? परदेसी हूँ, देखो परदेश हूँ हम लोग। हम कुछ एक बोलेंगे ना तो दो चाटा मार देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाए। बिजली पानी का बिल रोडों को भरना पड़ता है, 2000 महीने का कमाती, 2100 रुपये 2 महीने के भरे, क्योंकि पिछले महीने में नहीं भरे गए, तो दोनों महीने का तनख्वाह उठा कुछ घर का देखा, कुछ 2100 रुपये बिजली के बिल के भरे, वरना हाई फाई होकर आ रहा है। Only 47% of the total 246.6 million households in India have lavatories. Thousands of women all over our country wait for the cloak of darkness to cover their modesty so that they can head out to an open field to relieve themselves. They have to move in clusters so as to avoid being the prey of shamelessly lucrative men's eyes. Sometimes they are followed by men to these places who sit and watch while the women feel scared to perform the most basic of bodily functions. 5 रुपए लेते हैं, सफाई उफाई नहीं है, दीवारें, लेटरिन, बाथरूम, घड़े हुए गड्ढे, गंदे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। आदमी लोग देखते हैं, ऊपर चढ़ के छतों पे चढ़ जाएंगे, आदमी लोग लेट के देखेंगे, औरत जो है नहाएंगे गुसल करेंगे, फौरन ऊपर चढ़ के देखेंगे। ऐसी है। तो आप नहाने वगैरह कहाँ जाते हो फिर सुबह? इसी रोड है नदी। तो ऐसे गंदगी नहीं होती ऐसे रास्ते में ना? गंदगी शिव मंदिर में जाओ आप देखना। तो रास्ते में नहाने में ऐसे आपको तकलीफ नहीं होती? अब क्या करूं, जाके तो भी नहीं है। तो लोग जा रहे होते हैं ऐसे, आपको अजीब नहीं लगता रास्ते में? In our current budget, the central government has allotted 26,535 crores for the implementation of Sarv Shiksha Abhiyan, guaranteeing free elementary education to all those who can't afford it. Despite this, various government schools in the capital exploit the unaware to fill their pockets. यहाँ पे स्कूलों में जल्दी से एडमिशन नहीं होता है, झुग्गी लोग हैं देख के हम लोग मना कर देते हैं, एडमिशन नहीं होता, वो जल्दी से करवाना जाते हैं, पैसे लेते हैं ज़्यादा। सरकारी स्कूलों में 10 लाख भरो, 10 नहीं 1,000 रुपये भरो, 10,000 भरो, कोई 15,000 रुपये भरो एक महीने का नहीं, एडमिशन ओनली एडमिशन के लिए। और वैसे अगर एक महीने का कितना लेंगे? एक महीने का 1900 रुपये लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं लेते। The other seemingly guileless establishments mock education. The hundreds of students who flock to these classes eager to learn and do something in life face bitter disappointment. गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं, वहाँ कोई केयर करने वाला नहीं है, वहाँ का मैनेजमेंट जीरो है। मैं जो देखता हूँ ये देखता हूँ कि टाइम 7 बजे का होता है, वहाँ पे स्टाफ का आने का टाइम 7:20 साढ़े 7 का होता है, और प्रिंसिपल्स भी उसी टाइम आते हैं। बस इसके बाद कुछ नहीं। बच्चों से कहा जाता है कि रूम की सफाई करिए, फर्श की सफाई करिए, मेरा टेबल साफ करिए। इवन मैम खुद कहती हैं, जो टीचर्स हैं वो कहती हैं कि हमारी बेंच साफ करो, हमारी चेयर साफ करो, अपना फर्श साफ करो, झाड़ू लगाओ और फिर बैठो। बैठने के बाद भी कुछ नहीं। मैम अपने स्टाफ में बातों में बिजी हो जाते हैं, बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो लोग इनसे फीस नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। इन सबको मतलब यूनिफॉर्म देते हैं, शूज़ वगैरह देते हैं और बुक्स देते हैं, ठीक है। पर ये क्या करते हैं कि वहाँ जो पढ़ाई है, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब बच्चे जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको हिंदी भी हमें किस तरह से, मतलब हिंदी की बात हो रही है, इंग्लिश तो भूल ही जाओ, हिंदी भी उनको किस तरह से मिला के हमें वर्ड अक्षर पढ़ाने पड़ते हैं उन्हें, तब जाके वो पढ़ पाते हैं। वहाँ जो है टीचर्स आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ाते हैं। वो सिर्फ एक उनकी प्रेजेंट होती है कि हाँ हम हैं यहाँ पे, और जब ये एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो उनको ओपन बुक वाला जैसा होता है कि बुक खोलो, देख लो और टेस्ट एग्ज़ाम दे दो, वो चीज़ होती है यहाँ पे। हमारी 2 लड़की जाती हैं स्कूल, सरकारी स्कूल। इस मतलब कुछ भी नहीं दिया था, नाम लिखाई था, परंतु ध्यान कुछ भी नहीं देता है। कभी कोई बच्चा मारता है, कभी कैसे रोके स्कूल से भागे आते हैं, कभी कुछ तो जाते ही नहीं है, जाना ही बंद कर दिया। While the teachers sit comfortably in staff rooms with multiple fans, the children are left in barren classes devoid of any ventilation in this sweltering heat. Is this all they're entitled to? जो बाथरूम वगैरह है अभी तो सरकार की तरफ से ऑर्डर आए हैं, बनेंगे। अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ नहीं, क्लास में तो स्कूल में भी पंखे वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं। When a fire erupts,
and consumes an entire settlement with unimaginable ferocity. Police and revenue officials generally put it down to a short circuit. But are these houses, these lives, merely burning under the trigger of a spark? Or are these flames caused by the anger of the very police officials giving interviews later? Do these people not have a right to live merely because they are poor? With whatever meager supplies they had burnt to ashes, where shall they go next to protect themselves from the fire of the powerful? अब ये कभी यहाँ रहता हूँ, कभी कोई भगा देता, कभी पुलिस वाला भगाता, कहाँ जाता हूँ। कभी पुलिस वाला कपड़ा जला देता है, कभी कमेटी उठा के ले जाता है, यही परेशानी होता है। छोटी छोटी बच्चे लेके रहता हूँ। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का सामान हमारा जला दिया था पुलिस वाला। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे डम है या कुछ नहीं आता, उनमें से मतलब 4 या 5 बच्चों का अगर 10 बच्चे मेरे पास हैं तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो रियली पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास रियल मतलब ब्रेन है, दिमाग है, वो सब चीज़ सीखना चाहते हैं। कंडीशंस ऐसी नहीं है, लेकिन वो हमारे पास इसीलिए आते हैं कि हम उन्हें बेटर एजुकेशन दे सकें, और वो सीखते भी हैं। उनके पेरेंट्स भी इच्छा रखते हैं कि भाई इन्हें पढ़ाओ, वो आते हैं हमसे मिलने। पर हाँ, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है, लेकिन हाँ हमसे जो पढ़ते हैं और वो पढ़ते भी हैं और अच्छे नंबर से पास भी होते हैं, उन्हें है मतलब। तो आप ट्यूशन टाइप का वो लेते हैं या आप अपने ही टेस्ट कंडक्ट करते हैं? नहीं, एज ए वॉलंटियर पढ़ाते हैं हम, मतलब ट्यूशन्स टाइप मतलब नहीं है। एज ए वॉलंटियर भी तो क्या होता है ना, फ्रीली उन्हें एड कर रहे हो, फ्रीली उनकी हेल्प। तो आप ही उनका टेस्ट लेते हैं या ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं और आप? बस हम उनकी हेल्प करते हैं, मतलब हमारे पास वो अपनी हेल्प के लिए आ रहे हैं कि जो उनकी बुक्स हैं, स्कूल की जो बुक्स हैं, वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको आंसर्स नहीं आ रहे उनके, तो हम उनको आंसर्स लिखवा देते हैं। मतलब पूरा चैप्टर रीड करवाना, प्रॉपर आंसर्स बताना, सब चीज़ उन्हें ठीक से पढ़ाते हैं। उनके बीच में हम टेस्ट लेते रहते हैं, इसलिए कि वो एकेडमिक जो उनका स्कूल का जो लेवल है उसमें वो पास हो सके। और हमारे से जो होता है फाइनेंशियली हम भी उनकी हेल्प कर देते हैं, उन्हें बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, पेन पेंसिल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं, या जो जैसे कुछ किसी को गाइड दिलानी है कि तुम बुक ले लो, उस चीज़ की हेल्प करते हैं। जो हमारी मेन जो इंचार्ज है वहाँ की, उसका मेन मोटिव होता है कि 9-10 में लड़का या लड़की आ गए हैं तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इन्हें कुछ मतलब साइड बाय साइड बिजनेस कुछ मतलब सिखा दिया। जैसे लड़कियाँ होती हैं तो उन्हें कुछ पार्लर का कोर्स बता देते हैं कि इस तरह का कर लो ज्वाइन, कि वो आगे उनका, क्योंकि उनके पास और इतना पैसा नहीं होता ना कि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें, मतलब फर्दर। मैं 10 साल। कौन से स्कूल में जाते हो? स्कूल में नहीं जाती हूँ, मैं कोठी में पढ़ती हूँ। कौन पढ़ाता है आपको वहाँ? हमारी मैम बहुत अच्छी मैम है। तो वो घर पे बस काम करती है और आप लोगों को पढ़ाती है? नहीं, वो घर ड्यूटी उस पर आते हैं, टीवी पे भी आते हैं, बहुत नौकरी करते हैं और हमें पढ़ाना भी चाहते थे, इसलिए हमें पढ़ाया। तो आपको अच्छे से पढ़ाती है? यस, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टर। अब आपको दिल्ली में रहने में कोई तकलीफ होती है? नहीं, अब तो मुझे अच्छा ही लगता है दिल्ली रहने में। गाँव जाके नए नए लगता है, इधर तो पुराना हो गया, इधर नया लगता है।